بلیٹن میں دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، مگر سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں بھارت میں امریکی سفیر کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ اور متنازع علاقے سے متعلق غلط بیان، پاکستان کا شدید احتجاج، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت ڈی مارچ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے بیان کو مسترد کرتا ہے تو اہم خبر ہے کہ بھارت میں امریکی سفیر کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ اور متنازع علاقے سے متعلق غلط بیان، پاکستان کا شدید احتجاج، امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت ڈی مارچ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے بیان کو مسترد کرتا ہے۔ ایک اور اہم معاملہ ہے بلاول بھٹو کا قانون سازی اور اہم ایشوز پر حکومت سے تعاون نہ کرنے کا اعلان، اعتراضات دور کرنے کا مطالبہ، چیلنج بھی دے دیا۔ بولے ہمارے بغیر قانون سازی کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم ووٹ نہیں دیں گے، اگر قانون پاس کر بھی لیں تو صدر کے پاس جائیں، انہیں منائیں اور دستخط کروائیں۔ آزاد کشمیر میں متنازع اور زور زبردستی کی حکومت، نون لیگ کو مبارک ہو۔ جیالے چیئرمین نے نئے صوبوں پر اپنا موقف بھی سامنے رکھ دیا۔ بولے پیپلز پارٹی عوام کی رائے کے ساتھ کھڑی ہے، زور زبردستی کو پہلے مانا ہے نہ آج مانیں گے۔ جنوبی پنجاب میں نئے صوبے پر اتفاق ہے، اگر ایسا نہیں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پنجاب کے خلاف سازش کروں۔ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن، لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے۔ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں۔ ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے، اگر ہمارا اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو۔ اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو، صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی کر لے۔ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں، ہارتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات ہم نہیں چاہتے کہ ایسے، ہم اپنا شکست خوشی سے تقسیم کرنے کے لیے تھے۔ اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو۔ پیپلز پارٹی تو وہاں کھڑی ہے جہاں وہ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے۔ آج تک کوئی پروپوزل ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کوئی تفصیل حکومت کی طرف سے، حکومتی جماعتوں سے کسی بھی موقع پہ ایسے کوئی بات ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، عوام کی رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا، عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے۔ ہم زبردستی، زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں، نہ آج مانیں گے، نہ کل مانیں گے۔ جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا وہ آپ کے سامنے، اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات، پارلیمانی امور اور ملک کی سیاست پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے دونوں رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں پارلیمان میں کردار ادا کریں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے بتایا وہ پارٹی چیئرمین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ملاقات میں پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور علاج کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا بہتر ہوتا یہ قدم حکومت خود اٹھاتی، اس وقت ان ہاؤس تبدیلی پر فوکس نہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہو سکتے ہیں مگر دال میں کچھ کالا تو ہے۔ میں نے حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا، بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے، اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود
ये कदम उठाते मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। पीपल्स पार्टी का और ऑपोजिशन लीडर्स वो कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया। ऑपोजिशन में बैठे हुए सियासी जमातें हैं वो इस फैसले पे नजरसानी करके वो पार्लियामान के कमेटीज में वापस आए। इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। वज़ीर आज़म के बारे में ये कहा था कि मैं इसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं समझता हूँ इसका नीयत सही है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के लिए 2 दिन में सिक्योरिटी इंतजामात ना हुए तो मजीद मोहलत ली जा सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा वजाहत आनी चाहिए कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला मखसूस हालात के लिए किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर बोले हमें तो दाल में कुछ काला नजर नहीं आ रहा, अगर दाल में कुछ काला हुआ तो बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, करेंगी वाला तो सवाल ही नहीं। अगर ये एक लफ्ज या एक लाइन हो जाती कि ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि किसी और के ऊपर लागू नहीं होगा, फिर पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अदालत से कोई टाइम रिक्वेस्ट करके अगर 2 दिन में ये अरेंजमेंट्स मुकम्मल ना हों तो कोई थोड़ा वक्त जो है वो हासिल किया जा सकता है, लेकिन इन अरेंजमेंट्स में कतन किसी की कोताही नहीं की जा सकती। इमरान खान शिफा से बनी गाला जाएंगे, सब जेल करार दी जाएगी बनी गाला के? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। फौज और हुकूमत के दरमियान मुकम्मल हमायंगी है। आपको नजर भी आनी चाहिए और है भी ऐसे। दाल में काला तो बिलावल को भी नजर आ रहा है। हमारा तो ये मानना है कि दाल में काला नहीं है, अगर काला है भी तो उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले पर हुकूमत ने नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। नजरसानी की दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, फैसले में कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का जेल रूल्स में वज़ाह तरीक़ाकार नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने कानून से हटकर हुक्म दिया जो नुमायां कानूनी खामी है। मुकदमे में फ्रीकैन को नोटिस जारी किए बगैर ऑर्डर जारी किया गया। पटिशन के काबिल समाअत होने का संजीदा कानूनी नुक्ता भी मौजूद था, मगर काबिल समाअत का नुक्ता मौखर करते हुए एक तरफा अबूरी हुक्म जारी किया गया। केस के अबूरी मरहले में हतमी नोयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। बानी की अस्पताल मुंतकली किसी डील का नतीजा नहीं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहा फरीकैन से दरख्वास्त है फैसले को सबूताज ना करें, अमल दरामद होने दें। बानी इलाज की हद तक ये अस्पताल में रहेंगे। सबकी जेल को हम नाहक समझते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड समझते हैं और उसको एक दिन भी एक घंटा भी जेल उसका होना, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे वो जेल में हो, उसको हम नाहक समझते हैं। लेकिन मेरी सबसे ये दिन तक इस ऑर्डर तक आने में बड़ी कोशिशों के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं, बड़े मुश्किलों के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब इन चीज़ों को रिवर्स ना करें, मेहरबानी करके दिल बड़ा करें, इनको इम्प्लीमेंट करें। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सारी अंडरटेकिंग दी है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं हो किया जाएगा, इस पे सियासत नहीं हो। मैं खान साहब के फॉलोअर को, सोशल मीडिया वालों को, सबको कह रहा हूँ कि हमारा मेन कंसर्न खान साहब का सेहत, बुशरा बीबी की सेहत है, लिहाजा कोई भी ऐसी चीज ना करे जिसको नेगेटिव लिया जाए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली केस में दरख्वास्त गुजार डॉक्टर उस्मा खान की मुतफरिक दरख्वास्त, इजाफी दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात, नवाज शरीफ की बिरून मुल्क रवानगी और मरीम नवाज की मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल हैं। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बानी से मुतल्लिक तशवीश पर मबनी खतूत और बरतानवी पार्लियामेंट की मुतल्लिका कार्रवाई भी दस्तावेजात में शामिल है। ट्रायल कोर्ट का बानी पीटीआई के जाती मुआली तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेजात का हिस्सा हैं। बानी को जेल से अस्पताल मुंतकिल करवाने के लिए पीटीआई रहनुमाओं की दौड़ धूप जारी है। पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात। पीटीआई वफ़द ने स्पीकर से बानी को अस्पताल मुंतकिल करने पर तवज्जो देने पर जोर दिया। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने भी दूरियां खत्म करके पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। जरा ये बताते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा कि पीटीआई और हुकूमत मुज़ाकरात करें, मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ। ये भी कहा कि कायमा कमेटियों से इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, आप लोग वापस आ सकते हैं। महंगाई के पहाड़ तले दबे अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने डीजल की कीमत में बड़ी कमी का फैसला कर लिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने नवीद सुना दी, कहा डीजल की कीमत में 30-32 रुपये से ज्यादा की कमी की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज से कामयाब मुज़ाकरात किए। रिफाइनरीज ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया है।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि ओगरा की जानिब से डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कुछ देर में होगा। जब जंग में एक दफ़ा फिर शिद्दत आई है तो बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतों के अंदर बेपनाह इजाफा आया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम जो डीज़ल इस्तेमाल करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हम मकामी तौर पे रिफाइनरियों के ज़रिए ख़ाम तेल को रिफाइंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को देते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी रिफाइनरियों को दरख्वास्त की, हमारी वर्चुअली 2-3 बैठकें रिफाइनरीज के साथ हुई हैं। रिफाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि डीज़ल की कीमतों के अंदर एक नुमायाँ कमी 30-32 रुपए से ज़्यादा की कमी आप देखेंगे। ओगरा चंद लम्हों के बाद अपनी कैलकुलेशनों को हतमी शक्ल दे के आवाम के सामने लेके आएगा। हुकूमत और मकामी ऑयल रिफाइनरीज के दरमियान डीजल की कीमत के नए फार्मूले पर इत्तफाक। कीमत कैसे कम होगी और क्या फार्मूला तय पाया है, ये जानेंगे अपने रिपोर्टर ज़हीर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। बुनियादी तौर पर जब पीक सीजन होता है पाकिस्तान में डीजल 30% इंटरनेशनल मार्केट से जो फिनिश प्रोडक्ट मंगवाई जाती है उसके साथ जो क्रूड मंगवाया जाता है उसकी कीमत को लिंक किया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें चल रही होती हैं उस हिसाब से चार्जेस किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त पीक सीजन नहीं है और पाकिस्तान में डीजल जो तैयार हुआ है 70% वो बाहर से क्रूड मंगवाया जाता है और उसको इंटरनेशनल मार्केट के बजाय हुकूमत ने रिफाइनरीज को ये कहा है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट के बजाय जो क्रूड की कीमत है एक तो वो चार्ज किया जाए और दूसरा हुकूमत ने ये किया है कि जो डीजल बाहर से इंपोर्ट करके क्रूड लाया जाता है और फिर उससे डीजल तैयार किया जाता है उसमें रिफाइनरीज का एक ख़ास उनको मार्जिन दिया जाता है। उस मार्जिन को 50% रिड्यूस करने पे रिफाइनरीज और हुकूमत का एग्रीमेंट हो चुका है, लिहाजा उसको फिनिश प्रोडक्ट से डीलिंक किया गया और रिफाइनरीज का जो मार्जिन है उसको भी कम किया गया।